Hello students, how are you? Students, myself Himanshu Mishra and I am your new physics teacher. As you know that the physics is a part of science in the class 9th standard as well as 10th standard. In 10th standard, there are 6 chapters included in the physics portion, which is given as, here I have written that first one is electricity, the chapter which we take as a first unit, electricity, and the second one is magnetic effect of electric current, and third unit is source of energy, and the fourth unit is reflection of light, and the fifth unit is refraction of light, and sixth is the human eye and the colorful world. Maybe the sequence of this chapter which I have mentioned here is different from the NCERT syllabus, NCERT order, because I am following the reference book in which the order is like this. But don't worry, because when we have cover all the portion, then you will see that the NCERT as well as your all reference books will be covered. So I will follow this sequence, that is the starting from very first unit electricity and to the human eye and the colorful world. So if you see that the NCERT have the different order of the chapters, and I have written in different order, then you becomes worry, sir is not going good. No, this is not point of worry. आप जब भी देखें तो आप ये देखें कि आपको कंटेंट मतलब आपका जो चैप्टर्स हो रहा है, जो मटेरियल्स मिल रहा है, वो अच्छा है कि नहीं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत बात ना करते हुए. जो हमें पहला चैप्टर पढ़ना है, द फर्स्ट चैप्टर according to the given in reference book, electricity. Okay students, now we will start the unit electricity, the chapter 1. So what is the electricity? So we can see that if we see around us the TV and fan is rotating and bulb is glowing, they are doing it by taking some energy. जैसे कि आप देख सकते हो कि आप जब स्विच ऑन करते हो तभी ये सब अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. तो वो एनर्जी ही इलेक्ट्रिसिटी का एक कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी ही है, आप इलेक्ट्रिसिटी ही बोलते हैं. बट एट प्रेजेंट टाइम वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड दैट. सो हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम वेरी बेसिक एंड व्हाट इज द कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हम इसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कौन ले जाता है, कौन कैरी करता है, हम स्टार्ट वहां से करेंगे. देन अगर हम चैप्टर फिनिश करते हैं, then we will be able to understand that phenomena, that the bulb is glowing and fan is rotating, other things which operates with the help of electricity. Then what is that entity? And that is nothing but charge. तो इलेक्ट्रिसिटी का जो कैरियर होने वाला है वो उसको हम बोलते हैं चार्ज. देन व्हाट इज द चार्ज? व्हाट इज द चार्ज? आप क्या करते हैं? You take a pen and rub it in your dry air, and you see that the pen becomes pen now have some property. With the help of it attracts some small pieces of paper. Then what properties comes on the surface of the pen? And that is the property is called charge. वही प्रॉपर्टी है जिसे हम चार्ज बोलते हैं. यानी अगर आप पेन से क्या कर रहे हैं, स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को रब करने को देख पा रहे हैं, तो कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पेन पर एग्जिस्ट करती है, तो उस प्रॉपर्टी को, उस आपकी जो ये नई चीज आपको देखने में आ रही है, उसी को हम चार्ज बोलते हैं. तो चार्ज के बारे में बेसिक आइडिया आपको ये लगा कि चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ये किसी ऑब्जेक्ट की क्या है? प्रॉपर्टी, बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसकी हेल्प से, जिसकी सहायता से इट अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, जिसकी सहायता से ये क्या करता है, किसी स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को ट्रैक्ट करता है. ये आपने कई बार किया होगा. तो चार्ज का क्या है कि इट इज प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट
by virtue of which it attracts small objects। तो यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी बेटे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक मतलब जैसे सांस लेना हमारी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इसे हम चाहे न चाहे जब तक अगर हमारी लाइफ लाइन चल रही है तो हम इसे देखते हैं कि ये प्रोसेस होता रहता है। इसीलिए ये किसी ऑब्जेक्ट की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, और ये जब किसी कंडीशन के थ्रू गुजारी जाती है तो ये दिखती है, ये शो करती है। जैसे आपने बोला कि आपने ये समझा कि हम पेन को क्या करते हैं, हेयर में रब करते हैं, तो ये क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। तो ये पेन पे जो सरफेस पर ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है वो किसी प्रोसेस के करने के बाद मिलती है। तो कभी कभी आपको डायरेक्ट देखने को मिल सकता है, या कभी किसी प्रोसेस में आपको देखने को मिलता है। तो चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट by virtue of which it attracts small pieces of small objects या small pieces of paper etc। तो यहां पर चार्ज जो होगी वो किसी भी सिस्टम की या किसी भी बॉडी की या किसी भी ऑब्जेक्ट की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, दैट मीन्स उसमें ही रहने वाली एक प्रॉपर्टी है। तो ये चार्ज तो समझ में आ गया हम लोग को। ओके, अब व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द चार्ज, दैट मीन्स पेन पर या जो हमने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उस पर अट्रैक्शन कभी स्मॉलर है या वीकर है, तो ये कितना स्ट्रॉन्गर या कितना वीकर है, तो ये अमाउंट ऑफ चार्ज के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज उस पर है। उसी तरीके से उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है या रिपल्सन भी हो सकता है। अभी हम डिस्कस करेंगे रिपल्सन के बारे में। फिलहाल यहाँ पर चार्ज का जो अमाउंट होगा उसको हम कैसे मेजर करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हो कि आपकी लंबाई, आपकी जो लेंथ है वो ज़्यादा है या कम है, कैसे, बाय कंपेयरिंग, बाय मेजरिंग। तो आप मेजर करते हो, तो चार्ज को किस में मेजर किया जाता है, ठीक है। तो हमें जानने की जरूरत होगी यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, जिसे C से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप मीटर को M से रिप्रेजेंट करते हो और किलोग्राम को kg से, वैसे कूलम को C से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, यहां यूनिट ऑफ चार्ज को है ना कूलम से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन अमाउंट ऑफ चार्ज को Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। Q कभी कभी कैपिटल Q, कहीं कहीं स्मॉल q। चार्ज को कैपिटल Q या स्मॉल q से रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसका यूनिट जो होगा वो आपका C से रिप्रेजेंट किया जाएगा, दैट मीन्स कूलम से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये इसकी SI यूनिट। SI यूनिट आपने सुना होगा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट, जो सबके लिए क्या है, एक्सेप्टेबल है। तो ये आपकी क्या हो गई, चार्ज की यूनिट हो गई। यहां पर आप पढ़ेंगे या आपको यह जानना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज, चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। या पहले हम लोग, अब हमें नेक्स्ट जानना है जो वो जानना है टाइप्स ऑफ द चार्ज। वेराइटी ऑफ द चार्ज मतलब चार्ज कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले चार्ज को कैटेगराइज किया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में। इन 16th सेंचुरी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्जेस को कैटेगराइज किया। आप भी कर सकते, आप भी समझ सकते हो इस चीज को कि आप जब किसी पेन को ड्राई हेयर में रब करके पेपर को उठाने की कोशिश करते हो तो पेपर उससे लिबरेट हो जाता है, चिपक जाता है। लेकिन अगर आप दो पेन, एक ही मटेरियल्स यानी एक कंपनी का आप दो पेन लीजिए और दोनों को हेयर में रब करके साइमल्टेनियसली पास में ले आए, तो आपको समझ में आएगा कि उनके बीच में रिपल्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न होके फोर्स ऑफ रिपल्शन है। अगर बेटे एक पेन आपका पेपर को उठाने में क्या है, सक्षम हो जा रहा है, एबल हो जा रहा है आफ्टर रबिंग इट इन हेयर्स, और दूसरे को जब हम आपस में पेन को पास में ले आ रहे हैं तो इनका क्या है, रिपल्शन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ड्यूअल नेचर, दो तरीके का बिहेवियर हमारा, तो दो तरीके का आपको बिहेवियर देखने को मिल रहा है बेटे।
तो ये दो तरीके का बिहेवियर हमें ये बताता है कि चार्जेस में वैरायटी भी दो तरीके की होती है। तो इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्जेस को दो पार्ट में डिवाइड किया, और चार्जेस आपके डिवाइड किया उन्होंने पॉजिटिव चार्ज, यानी पहला चार्ज जो होगा मतलब टाइप होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, और दूसरा जो होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा। तो दो तरीके का चार्जेस का कॉन्सेप्ट रखा गया, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। यहां ध्यान देने वाली बात है, आपकी पॉजिटिव चार्ज ना तो अच्छी है, नेगेटिव चार्ज ना तो बुरी है। पॉजिटिव चार्ज इज नॉट अ बैड चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इज नॉट अ गुड चार्ज। दीज आर द वेराइटीज ऑफ द चार्ज। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बस इसको ऐसे ही नाम रखना था, ऐसे रख दिया, ठीक है। तो कुछ बच्चों के मन में ये आता है कि पॉजिटिव चार्ज इज गुड चार्ज बिकॉज इट्स नेम इज पॉजिटिव। नो, ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट नेम ऑफ द चार्ज, ओके। तो क्या है, आपकी चार्जेस दो टाइप की क्या की गई, डिवाइड की गई, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब जब हमें, आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एटम्स के बारे में जानकारी हुई, एटम्स में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, तो और उनके चार्जेस की स्टडी की गई, तो देखा गया कि नहीं, वास्तव में चार्जेस दो तरीके की होती हैं, वन इज पॉजिटिव एंड अनदर वन इज नेगेटिव। एंड साइंटिस्ट ने क्या किया, प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज दे दिया और इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज दे दिया। तो इस तरीके से चार्जेस आपकी क्या हो गई, डिवाइड हो गई। तो आप यहां पर देखते हैं कि प्रोटॉन पर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एक चार्ज पर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, और चार्ज एक प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये किसी एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। और आप देखते हैं, आपने पढ़ा भी होगा केमिस्ट्री में कि चार्ज ऑन प्रोटॉन, एक प्रोटॉन पर भी आपकी सेम चार्ज होती है। लेकिन चूंकि हम लोग वी टेक द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव एंड द चार्ज ऑन प्रोटॉन इज पॉजिटिव, तो हम यहां पर एक पॉजिटिव साइन लेते हैं और यहां पर एक नेगेटिव साइन लेते हैं। दिस रिप्रेजेंट्स ओनली द पोलैरिटी, दैट मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज का होगा आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव चार्ज होगा, बट अमाउंट्स ऑफ द चार्ज ऑन बोथ, दैट इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव, आर सेम। एज यू कैन सी this, that it has -1.6 into 10 to the power -19 coulomb and proton has the plus 1.6 into 10 to the power -19 coulomb. The amount of the charges on both is same. Okay, तो हमने टाइप्स ऑफ चार्ज को समझा। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज क्या है, चार्ज की अपने क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो उस प्रॉपर्टीज को जानने की कोशिश करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज, तो पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगर हम पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के पास ले जाएं और नेगेटिव को नेगेटिव के पास ले जाएं, अब बात करते हैं पॉजिटिव का पॉजिटिव के पास, देन वी सी दैट द पॉजिटिव चार्ज रिपेल्स अनदर पॉजिटिव चार्ज एंड दैट अनदर पॉजिटिव चार्ज रिपेल्स फर्स्ट वन। मतलब जैसे मैं ये क्या करूं, एक पॉजिटिव चार्ज के पास ले जाऊं तो ये इसको रिपेल करेगा, दैट मीन्स दूर ले जाने की कोशिश करेगा, उसी तरीके से ये इसको रिपेल करेगा। बात करें अगर दो नेगेटिव चार्ज की, तो भी आपको यही देखने को मिलेगा, यानी ये नेगेटिव चार्ज इसको दूर की तरफ ले जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज इसको दूर तरफ ले जाएगा। यानी जब भी आप लाइक चार्जेस, ये एक कंडीशन में, ये दूसरी कंडीशन में, जब भी आप लाइक चार्जेस मतलब सिमिलर चार्जेस, जैसे यहाँ पॉजिटिव की बात हो रही है या नेगेटिव की बात हो रही है, जब भी आप लाइक चार्जेस सिमिलर चार्जेस पास में ले जाओगे तो उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, यानी वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते एंड दे विल रिपेल ईच अदर एंड ट्राई टू मेक देम अवे, मतलब अपने आप को क्या करेंगे, दूर रखने की कोशिश करेंगे। वहीं अगर हम क्या करें, पॉजिटिव चार्ज के पास नेगेटिव चार्ज ले जाएं या नेगेटिव चार्ज के पास पॉजिटिव चार्ज ले जाएं, यानी अनलाइक चार्जेस, एक कंडीशन ये, एक कंडीशन ये, कि यहां पर चार्जेस की क्या है, सिमिलरिटी नहीं है, अनलाइक चार्जेस हैं, तब हम ये देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। तो इससे हम पहली प्रॉपर्टी ये डिसाइड करते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, मतलब एक तरीके के चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं,
and the similar and dissimilar, that is unlike charges attracts each other। तो ये पहली प्रॉपर्टी आपकी बनती है जहां पर आपकी चार्जेस क्या करती हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करती हैं और लाइक चार्जेस रिपेल करती हैं। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस attracts each other। तो अनलाइक चार्जेस क्या करेंगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आई। अब बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टीज की। इस प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर किसी सिस्टम में आपको चार्ज दे दिया जाए, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहां पर चार्जेस दे दिया है ना, तो टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज इनके एल्जेब्रिक सम, जैसे एल्जेब्रा में आप सम करते हैं उसी तरीके से होगा। ठीक है, टोटल चार्ज इसमें क्या हो जाएगा, जैसे मैंने मान लीजिए कि +4e, दैट मीन्स यहाँ पे +4 चार्जेस रखा या +4 कूलम रखा, -2 कूलम रखा और यहाँ पे एक तीसरा +6 कूलम रखा। तो टोटल चार्ज कितना होने वाला है, +4 कूलम +6 कूलम -2 कूलम। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा आपका 6 4 10 और माइनस कर देंगे 2, तो 8 कूलम आपका नेट चार्ज होगा। तो इस पूरे बॉडी पर नेट चार्ज कितना होगा, 8 कूलम। दैट मीन्स टोटल चार्ज 8 कूलम। तो चार्जेस का एडिटिव नेचर होता है, ओके, और एडिटिव नेचर में एल्जेब्रिक सम का रूल फॉलो करते हैं। फिलहाल एडिटिव नेचर, चार्जेस है एडिटिव नेचर, ओके। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई बेटे। आप एग्जांपल में चाहे तो अभी प्रीवियस वाला लिख सकते हैं। थर्ड वन, चार्जेस आर कंजर्व in isolated system। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी हम क्या लिख रहे हैं कि चार्जेस आर कंजर्व इन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड मतलब जैसे इस समय कोरोना का दौर है और आप देखते हैं कि आइसोलेशन में भेज दिया जाता है। दैट मीन्स ना उसका बाहर से दुनिया से मतलब होता है, ना अंदर की दुनिया का बाहर से। तो अगर आप एक सिस्टम, इफ यू डिफाइन अ सिस्टम इन विच द रिलेशनशिप ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड एंड इनसाइड वर्ल्ड, मतलब सिस्टम के अंदर का वर्ल्ड और बाहर का वर्ल्ड क्या हो, सेपरेट हो, अलग अलग हो, तो ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम बोल सकते हैं। तो आइसोलेटेड सिस्टम में बेटे चार्जेस कंजर्व होती हैं। कंजर्व का मतलब जितना क्वांटिटी पहले रहेगा उतना अब भी रहेगा और कुछ समय बाद भी उतना ही रहेगा, टाइम बाय टाइम सेम रहेगा। तो अगर आपने एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया बेटे, then you will see that the amount of the charge will remain same time by time। This is the third property of the charge। Another one, fourth one, अगर हम चार्जेस को तोड़ने की कोशिश करें, फॉर एग्जाम्पल इफ अगर हम किसी चीज को तोड़ते हैं उसके स्मॉल एंटिटी में, फॉर एग्जांपल जैसे मैं पहले आपने पढ़ा कि सब्सटेंस है, मैटर है, फिर मैटर में मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा, फिर मॉलिक्यूल्स से अंदर गए तो आपको पता लगा एटम होता है, फिर एटम के अंदर गए तो पता लगता नहीं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होते हैं। इस तरीके से आप डे बाय डे क्या होते जा रहे हैं, स्मॉलर पोर्शन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो आपने ये देखा कि किसी भी सिस्टम, किसी भी बॉडी को हम उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तक ब्रेक कर सकते हैं, उससे छोटा ब्रेक नहीं कर सकते। वैसे ही अगर मान लीजिए मैंने इस सिस्टम पर चार्जेस दे दिए, मान लीजिए कुछ चार्ज इस पर अवेलेबल है एंड हम उस चार्ज को ब्रेक करना चाहते हैं, दैट मीन्स यहां से हम चार्जेस निकालना चाहते हैं बट इसके स्मॉल अमाउंट्स में, स्मॉलेस्ट अमाउंट में। तो हम कौन सा स्मॉलेस्ट अमाउंट इससे निकाल सकते हैं, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और इस पे क्या होगा, चार्जेस का ट्रांसफर होगा। तो अगर हम इससे चार्ज निकालना चाहें
तो हम मान लीजिए जैसे हमने निकाला है एक, पहली बार एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, दूसरी बार दो इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, मतलब एक बारी बारी से इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं। तो हमने मान लिया कि n इलेक्ट्रॉन्स निकाले, दैट मीन्स इस पर जो टोटल चार्ज था, सपोज करिए कैपिटल Q था, उसको मैंने क्या किया, निकालने की कोशिश की कि इस कैपिटल, जैसे आपके मान लीजिए कि एक आपके पास एक कंटेनर है जिसमें 20 बाल्टी पानी है, तो अगर आप ये क्यू मान लीजिए वो 20 बाल्टी पानी है, तो आप एक बाल्टी, दो बाल्टी, कितने बाल्टी अगर आपकी बकेट है तो बकेट की यूनिट से आप निकाल लो तो कितने निकालोगे, 20 निकालोगे। वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का क्या है, अवेलेबल है, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की तरह जैसे बाल्टी, एक बाल्टी आपने निकाला तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, समझ लीजिए, ऐसे ही सपोज करिए। तो टोटल चार्ज आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, टोटल चार्ज आप Q इज इक्वल टू NE सब लिख सकते हो, यानी आप इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हो, निकाल रहे हो, कितने इलेक्ट्रॉन्स आप निकाल रहे हो, n से n टाइम्स। तो आप ये देख सक रहे हो कि अगर हम चार्जेस को ब्रेक करना चाह रहे हैं, गिवन चार्ज को तोड़ना चाह रहे हैं, तो हम हमेशा ये देखेंगे कि या तो हम 1e निकाल पाएंगे, या तो 2e निकाल पाएंगे, या तो 3e निकाल पाएंगे, प्लस माइनस दोनों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, अगर आप प्रोटॉन निकाल लिए तो प्लस में आ गया, इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो माइनस में आ गया। तो प्लस माइनस 1e, प्लस माइनस 2e, प्लस माइनस 3e, इसी तरीके से प्लस माइनस 4e, प्लस माइनस 5e, सो ऑन। आप चार्जेस को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे Q इज इक्वल टू प्लस और माइनस NE लिख सकते हैं। कभी भी बेटे यू विल नेवर सी दैट द चार्जेस इज इन द फॉर्म ऑफ E by 2, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उसका बाई 2, 3E by 2 या समथिंग 5 by 7 by E। आप इस तरीके के चार्जेस को कभी भी ऑब्जर्व नहीं करेंगे। आप कभी भी जब पढ़ रहे होंगे तो आप ऐसा नहीं देखेंगे। जब भी आप देखेंगे you will see in complete numbers, whether it is positive or negative, but complete numbers में देखेंगे, plus minus 1000 E, these are the possibility of the charge, okay, but you will never see such kind of charges, that means half E, आधा E, 3 by 2 E, 5 by 7 E, okay, such kind of charge distribution which you will never see, and these are the possibilities, that means आप किसी भी तरीके से नंबर्स ले सकते हैं, बट वो कंप्लीट होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी, ठीक है, और लिखते हैं कि चार्जेस कैन बी रिप्रेजेंटेड, charges can be represented in integral multiple of electronic charges। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब है कंप्लीट नंबर, कंप्लीट नंबर। जैसे मैंने 1, 2000, 10,000 टाइप का नाम लिया, तो उसको आप लैंग्वेज में इंटीग्रल मल्टीपल बोल सकते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो किसी इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा उसी के मल्टीपल पर लिखेंगे, यानी आपका यहाँ पे E जो होगा वो क्या होगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज बेटे यही होता है। और N जो होगा आपका क्या हो सकता है, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, सो ऑन। इस तरीके के नंबर कोई भी हो सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को बेटे आप यहां पे लिख लीजिएगा कि दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। तो इसको क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है। ओके, अब आपके लिए यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि एक कूलम चार्ज पर, यानी किसी बॉडी पर एक कूलम चार्ज है, तो उस पर कुल कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं। फिलहाल हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, और जब प्रोटॉन की करना होगा तो बताएंगे आपको। फिलहाल लिखेंगे हाउ मेनी
इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है, आर देयर इन 1 कूलम चार्ज। तो 1 कूलम चार्ज में बेटे कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? तो अब आप देखिए क्वेश्चन ये है आपका, इसका सॉल्यूशन देखिए। आपको क्या क्या गिवन है? गिवन है सिर्फ एक चीज, और वो है आपका क्या, पहले तो आपको क्यू ये दिया है कि अमाउंट ऑफ चार्ज, तो क्यू की वैल्यू दैट मीन्स अमाउंट ऑफ चार्ज आपकी 1 दिया है, 1 कूलम। और ये दिया है कि इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये बेटे होता है, इस नंबर को याद कर लीजिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहां पर हम माइनस साइन को इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज वी आर फाइंडिंग द नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स। फॉर एग्जांपल जैसे आप क्लास में अपने साथ में पढ़ने वाले बच्चों को काउंट कर रहे हैं, देन इट विल नॉट बी नेगेटिव, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो जब भी आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे देन ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन नेचर ऑफ द चार्ज जब निकालेंगे तो वहां पे नेगेटिव हमें शो करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला है कि हम किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रॉनिक चार्ज में बांट सकते हैं, और वो फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू NE। तो हमारे पास Q है बेटे, E भी है, और n हमें कैलकुलेट तो करना ही है। तो हम क्या करेंगे, यहां से हम n इज इक्वल टू क्यू बाई ई कर लें, n इज इक्वल टू क्यू बाई ई, और जो वैल्यूज है उसे पुट कर दिया जाए और हमारा काम देखेंगे हो जाएगा। तो n आपका एज इट इज लिखा रहेगा, q की वैल्यू आपके पास 1 है जैसा कि आप देख रहे हो, और e की वैल्यू क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये आपकी e की वैल्यू है। अब ये जो 10⁻19 है बेटे ना, इस टर्म को हम ऊपर ले जा सकते हैं, और जब ये बेटे न्यूमरेटर में जाएगा देन द साइन विल बी चेंज्ड, ओके। एंड अगर ये नेगेटिव है तो वो भी क्या, ऊपर जाने पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगली लाइन में हम इसे 1/1.6 इंटू 10⁻+19 लिख सकते हैं, ओके। अब हमें क्या करना है, 1/1.6 को कैलकुलेट करना है, हम इसको रिमूव कर रहे हैं, आप अपनी कॉपी में लिख चुके होंगे। क्या कर सकते हैं आप, 1/1.6 को मैं किनारे सॉल्व कर रहा हूं, आप कैसे करते हैं देखिए। हम क्या करें, इसे सिंप्लीफाई कर ले, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई, नीचे 10 से मल्टीप्लाई। तो अगर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर आप 1 इंटू 10 करेंगे और नीचे देखिए 1.6 इंटू 10 करेंगे, ठीक है। तो ऊपर आपका 10 हो जाएगा, नीचे आपका 16 हो जाएगा। नाउ यू कैन डिवाइड इट वेरी गुड इन गुड मैनर। आप इसे पहले 2 से क्या कर लीजिए, डिवाइड कर दीजिए, 2 5 जा 10 और 2 8 जा 6, तो हमारे पास क्या आ गया, 5/8। अब फर्दर आप डिवीजन में चले जाइए, है ना। तो 8 को 5 से डिवाइड करना है, नहीं होगा तो हमें क्या करना होगा, डेसिमल में जाना पड़ेगा, 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे 0। फिर आप 8 का टेबल करेंगे तो 8 6 जा 48, 2 बच जाएगा। फिर आप यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर 8 2 जा 16 हो जाएगा, यहाँ पे फिर 4 आएगा, और फिर आप 0 लगा के इसे क्या कर सकते हैं, इस डिवीजन को खत्म कर सकते हैं। देन आंसर क्या आ गया आपका, 0.625। तो यानी 1/1.6, अगर आपको 8 लग रहा है तो ये 6 है बेटे, 1/1.6 का जो डिवीजन करने पर वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 0.625। इस तरीके के डिवीजन को आपको करना पड़ेगा, एग्जाम में भी आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको अपने से भी करके देखें, और नहीं आता तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो मैंने डिवीजन किया, और डिवीजन से हमें क्या मिला, 0.625 इंटू 10⁻19। अब बेटे हम क्या करेंगे, 6 को, इस डेसिमल को हम यहां भेज देंगे, और वो कैसे भेजेंगे, यानी इस वैल्यू को हम डेसिमल को अगर इधर ले जा रहे हैं तो हमें यहां पे एक क्या कर लें, जैसे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.6 इंटू 25 इंटू 10 इंटू 10⁻18 लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो पावर है वही तो ऐड होके फिर 19 देगा। अब इस 10 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 0 है ना, वो क्या करेगा, डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट कर देगा, तो ये आ जाएगा 0, जो 0.6 था अब वो 6.25 हो जाएगा, इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटे एक कूलम में, 1 कूलम में हमारे इतने इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ
1 कूलम में आ जाएंगे। ओके, तो इसी तरीके से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं कि 2 कूलम में कितना होगा, 3 कूलम्स में कितना होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने को मिलेंगे और आपके लिए होमवर्क भी इसी पे रहेगा, आधारित इसी पे बेस्ड रहेगा, इसी क्वेश्चन पे। इसलिए बी अवेयर और इसको अच्छे से सॉल्व करें। नहीं आता तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं और आप इसको ढंग से पढ़िए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से कांटेक्ट करके, मेरे से बात करके अपनी प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और जो भी घर वाले बोल रहे हों कोरोना से बचने के लिए उसको फॉलो करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।